سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے. اب ود ان دا پارٹی کون ہے جو اس وقت پارٹی کے اوپر ہی جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے اور پارٹی کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے. پہلے ہم دیکھ رہے تھے خواجہ آصف جو ہے وہ یہ کام کر رہے تھے. اب جو ہے خواجہ سعد رفیق نے کچھ بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز اپنے ایکس پر ڈالی ہے. وہ بھی جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی پر جو ہے وہ بجلیاں گرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں, تو ایسا ہی کچھ کام ہو رہا ہے. اون گول پہ اون گول جو ہے وہ کیے چلے جا رہے ہیں. اب یہ اون گول جو ہے وہ جان کر کے ہو رہا ہے یا اپنی معصومیت میں, یہ تو پتہ نہیں, یہ تو وہی بہتر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. تو کیا پوسٹ کیا ہے خواجہ سعد رفیق نے؟ خواجہ سعد رفیق نے ایک چھوٹی سی ویڈیو پوسٹ کی ہے. درخواست یہ کروں گا, چیکس دینے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی تصویریں نہ بنائی جائیں. اپنے کیمرے آپ آف کر دیں. سمجھتا ہوں کہ اس کی تصویر بننا مناسب نہیں ہے. ہم نے بیٹھ کے ایک چھت کے نیچے بات کر لی ہے, کہ نمائندوں نے بھی بات کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صحافیوں سے کہتے ہیں کہ ذرا کیمرہ آپ بند کر دیں, ہماری آپس کی بات چیت ہو گئی ہے. اب جو ہے متاثرین کو چیک دینے کا وقت آیا ہے. جو سیلاب زدہ متاثرین ہیں ان کو چیک دینے کا وقت آیا ہے, اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو متاثرین ہیں ان کی تصویر بنانا مناسب نہیں ہے. سو جو ایک مارکیٹنگ, ایک پبلسٹی یا سیلف پروجیکشن جو کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے یہ چیک دے رہے ہیں, ہم جو ہے یہ امداد دے رہے ہیں, یہ لیں ہم نے روٹی دی, ہم نے جوس کا ڈبہ دیا, ہم نے اناج کا تھیلا دیا, اس سے جو ہے اس کے برعکس خواجہ سعد رفیق نے یہ کہا کہ میں یہ چیک دے رہا ہوں لیکن آپ پلیز اس وقت جو ہے یہ کیمرہ بند کر دیں. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں ورتھ ڈسکسنگ. سب سے پہلے سلام ہے خواجہ سعد رفیق کو کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. ویسے تو وہ اپنے ایک اسٹریٹ فارورڈ جو ہے اسٹیٹمنٹس کے لیے, اسٹریٹ فارورڈ اسٹیپس کے لیے جو ہے وہ مانے جاتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے ہی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. exactly what was needed, exactly this was the need of the hour. کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس مصیبت میں, اس مشکل وقت میں کیا سیاستدان صرف اپنی سیلف مارکیٹنگ, اپنی سیلف پروجیکشن میں ہی بزی رہیں گے, امداد کرنے کے بہانے اسی میں جو ہے وہ اپنی سیلف پروجیکشن بھی کیے چلے جائیں گے یا نہیں. اور خواجہ سعد رفیق پروفڈ کہ سیلف پروجیکشن, سیلف مارکیٹنگ اور اپنے آپ سے جو ہے وہ نکل کر, اپنے سیلف سینٹرڈ سے ہونے سے نکل کر جو ہے ہمیں لوگوں کی جو ہے وہ امداد کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور یہ کلیئر میسج خواجہ سعد رفیق کس کو دے رہے تھے؟ جو کہ سیلف مارکیٹنگ اور سیلف پروجیکشن کی کوئین ہیں اس وقت, وہ ہیں مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ نے تو کوئی موقع, کوئی لمٹ, کوئی طریقہ نہیں چھوڑا اس وقت اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے. تو یقیناً یہ ایک کلیئر میسج جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کی جو سی ایم پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ, یہ ان کے لیے میسج تھا. اب اس میں یہ ہے کہ اتنی سیلف پروجیکشن اور پبلسٹی ہو گئی ہے کہ ایک مذاق ہی بن گیا ہے. اینڈ آئی تھنک مریم نواز ہیز ٹو ری تھنک اینڈ ری وزٹ ہر اسٹریٹجی, جو کہ اس وقت ان کو جو بھی ان کی اسٹریٹجی بناتے ہیں انہوں نے شاید مشورہ دیا ہوا ہے اس قسم کی سیلف پروجیکشن کا, کیونکہ شوق تو تمام سیاستدانوں کو ہوتا ہے اور ہم نے ماضی میں تمام سیاستدانوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن جو مریم کر رہی ہیں, ایک موقع ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے کوئی چیز کرنے کا, اور یقیناً یہ موقع اور وقت نہیں ہے. there are few things that are extremely wrong about this kind of strategy جو اس وقت انہوں نے اپنائی بھی ہے. وہ ایک بمبارڈمنٹ جو ہے انہوں نے کر دی ہے اپنی تصویروں کی ہر جگہ, اپنی چاہے وہ ڈبے ہوں, چاہے وہ تھیلے ہوں, چاہے وہ پیچھے بینرز ہوں, چاہے پوسٹرز ہوں, چاہے گاڑیاں جو وہاں جا رہی ہیں امداد کے لیے وہ ہوں, ہر جگہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور ایک بمبارڈمنٹ کر دی. ایسا لگتا ہے کہ ایک ریکال ویلیو جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ایک ہاؤس ہولڈ نیم جو ہے وہ بننے کے لیے انہوں نے اس قسم کی ایک اسٹریٹجی جو ہے, ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا واقعی ان کے فائدے میں جا رہی ہے, یا پھر یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو بیک فائر کر دے اور لوگ بددل ہو جائیں. کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا یہ وقت نہیں ہے, یہ موقع نہیں ہے اس قسم کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اپنانے کا. ہر موقع پہ, ہر وقت پر ایک ہی طرح کی اسٹریٹجی تو نہیں اپنائی جا سکتی. تو جو بھی ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے, مریم نواز صاحبہ really needs to revisit her strategy, ہر مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو کہ وہ اس وقت یوز کر رہی ہیں. عوام جو ہے وہ باشعور ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی مشکل میں اور کتنے مجبور جو ہے وہ اس وقت سیلاب زدگان ہیں, اور ایسے وقت میں ہر چھوٹے بڑے ڈبے پہ اپنی تصویر لگانا, اپنی تشہیر کرنا, اپنی پبلسٹی کرنا, تو عوام یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں آپ مدد کر رہی ہیں یا آپ اپنی مدد جو ہے وہ کرنے نکلی ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اپنی بھوک کے مارے اور اپنی مجبوریوں کے مارے اگر کوئی بندہ بیچارہ
बेचारा ये देखना भूल जाता है कि उस डब्बे पे किसकी तस्वीर है। तो उनके जो अफसरान वहाँ पे गए हुए हैं डब्बे बांटने, वो पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं, वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि वो दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये मरियम नवाज़ साहिबा और ये नवाज़ शरीफ है, इन्होंने जो है वो आपकी मदद की है। सो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ वेरी चीज़ी। ये जिस किस्म की मार्केटिंग आप कर रही हैं, आई थिंक यू रियली नीड टू हायर अ बेटर टीम फॉर दैट। दूसरा ये कि हमारी तो दीनी और सोशल वैल्यूज़ दोनों ये कहती हैं कि आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप जिसकी मदद कर रही हैं उसकी भी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तो उनको एक एक डब्बा देते हुए, एक एक चीज़ देते हुए, एक एक बॉक्स खाने का देते हुए आप इस तरह से कैमरे में दिखाते हैं कि उनकी डिग्निटी तो मतलब कहीं की नहीं रहती, उसका तो आप जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इतनी तज़लील उन लोगों की जिनको जो है ये चीज़ दी जा रही है, क्योंकि वो भूखे हैं, वो मजबूर हैं, उनका सब कुछ लुट गया है, ये भी आप ऑन कैमरा दिखाते हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं, आप ये समझें कि आवाम को बहुत अकल आ गई है। ये यंगर जनरेशन जो कि हमारी पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा है, वो सब समझते हैं एवरीथिंग इज़ देयर ऑन सोशल मीडिया। आपका जो मुखालिफ ग्रुप है, जो मुखालिफ वोटर है, वो जाके इन चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे एनालाइज करते हैं, और फिर बाकी लोग, बाकी आवाम भी जो है वो ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। और वैसे भी आवाम को अकल है कि ये जो आप मदद कर रही हैं, जो डब्बे बांट रही हैं, ये सब टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर के पैसे से ही आप मदद भी कर रही हैं, और टैक्स पेयर, आवाम के टैक्स के पैसे से ही आप अपनी तशहीर भी उन डब्बों पर लगा लगा के कर रही हैं। तो वो पैसे भी जो है वो आवाम ही भर रही है। तो ये सब अकल जो है वो अब लोगों को आ गई है। आप वो दिन गए कि आप अपने एक्स पे ये पोस्ट करें और वाह 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 जो है वो होता रहे। वो दिन गए जब लोग अपनी आंखें, कान, अकल सब उस पर ताले लगा के जो है वो हर चीज़ को, अपने लीडरान की हर चीज़ को जो है वो फॉलो करते थे। अब लोग देख सकते हैं कि दूसरी साइड या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू या मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है, वो भी उनके सामने हर दफ़ा सोशल मीडिया पे जो है वो आता रहता है। तो प्लीज़ आप ये ना करें। सियासतदानों को तो समझा जाता है कि अवाम की नफ्स पे हाथ होता है उनका, उनको पता होता है कि माहौल क्या है, हवाओं का रुख जो है वो किस तरफ है, सब जो है वो समझते हैं। तो इस वक्त जो माहौल है, जो हवाओं का रुख है, वो आपसे ये हरगिज़ नहीं चाहता कि आपकी तस्वीरें जो हैं वो देखना नहीं चाहते, वो आपकी कोई पब्लिसिटी जो है वो इस वक्त देखना नहीं चाहते, वो आपकी एम्पैथी चाहते हैं। तो इसको समझें और इसी को जो है वो इस वक्त अपनाएं, और मुतासरीन को प्लीज़ अपनी पब्लिसिटी और अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आपने आपकी इसी मार्केटिंग की वजह से और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो बेड़ा गर्क हुआ है, और जो उसको लोग जो है वो कोस रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो जाके शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने चले जा रहे हैं। वो रियासत के मुलाजिम होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सियासतदानों के, सियासी पार्टीज़ के जो है वो मुलाजिम बन गए हैं। तो ये जो वीडियोज़ आती हैं जब वो आपके डब्बे बांट रहे हैं और वो डब्बों में से एक एक चीज़ निकाल के जो है वो बेचारे उस गरीब इंसान को जिसका सब कुछ लुट गया है उसको दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए ये चीज़ें हैं, फिर डब्बा यूं पलट के दिखाया जाता है कि ये मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने जो है वो आपके लिए दिया है, तो उनकी कोई जो है ना उन अफसरान की भी कोई इज़्ज़त नहीं रह जाती। सो प्लीज़ इस पे भी जो है वो सोचें कि आपने जो है उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा है। सो ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है वो ज़बरदस्त मैसेजिंग दी है, एक क्लियर मैसेज दिया है, और शायद कोई और मैसेज देता तो उसको शायद घास इतनी ना डाली जाती। अब ये आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं जो आपको जो है वो इस किस्म की मैसेजिंग दे रहे हैं और इतना क्लियर मैसेज दे रहे हैं अपने ही ट्विटर पर डालकर कि ये ना करें, मुतासरीन की जो है वो तस्वीरें ना बनाएं, उनकी वीडियोज़ ना बनाएं जब मैं उनको चेक दे रहा हूँ, ये मुनासिब नहीं है। तो ये क्लियर मैसेज जो है वो डेफिनेटली मरियम नवाज़ साहिबा के लिए है, अगर वो ये मैसेज लेना चाहें और इस पर अमल करना चाहें। अच्छा जी, इसके अलावा अलीमा खान साहिबा जब एक दफ़ा फिर जो है वो कहीं पर सहाफ़ियों से जो है वो बात कर रही थी, तो एक और हमला जो है उन पर हुआ। पहले एक सहाफ़ी हैं तैयब बलोच, उन्होंने कोई सवाल पूछा जिस पर अलीमा खान ने कहा कि मैं थोड़ी देर में जवाब देती हूँ या क्या, और फिर वहाँ से लोगों का कहना है कि वहाँ से जो है वो गाली आई, यानी कि वो सहाफ़ी जो है वो उन्होंने गाली दी। और ये वो सहाफ़ी हैं तैयब बलोच जिनके बारे में जो है वो PTI बार बार कह रही है कि ये बहुत प्रोवोकिंग सवाल जो है वो कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव टोन जो है वो इनकी नज़र आ रही है। पिछले हफ्ते भी उन्होंने बड़े ही जाराना अंदाज में जो है वो सवाल किया शौकत खानम के हवाले से, फिर अलीमा खान से उन्होंने उनके अपार्टमेंट्स के हवाले से सवाल किए। तो ये PTI का अपना एक एनालिसिस था कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोवोकेटिव और एग्रेसिव स्टाइल में जो है आकर ये सहाफ़ी जो है वो सवाल कर रहे हैं, और फिर हमने देखा कि आज जो है इस हवाले से फड्डा
हो ही गया। यानी कि उन्होंने जब गाली दी तो दूसरे लोग जो है उन पे चढ़ दौड़े और फिर उन पे तशद्दुद भी किया, उनको मारा पीटा भी, और फिर वो वहाँ से चले गए। अब इससे पहले जो है वो अंडे वाला वाक़या भी हुआ था, और वो अंडे वाले वाक़ये में जिन लोगों को पकड़ा था उनकी कोई आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं हुई है। पुलिस से बार बार पूछा है पीटीआई वालों ने कि भाई अगर ये स्टेज नहीं था, प्लान नहीं था, तो पेश करें कौन है ये लोग, क्या आइडेंटिटी है इनकी, वो रिवील करें। लेकिन पुलिस ने ना पर्चा किया, ना मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, ना उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील की। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस ने खुद कहा है कि हम तो खुद परेशान हैं, ये हमारे मत्थे जो है वो क्या चीज़ लग गई है, हम खुद जो है वो परेशान हैं इस मामले पर। पहले पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये पीटीआई के लोग हैं, ये कहीं से आए हैं, इन्होंने कोई सवाल किया है इन औरतों ने, और फिर जब इनको जवाब नहीं मिला तो इन्होंने अंडा मारा, तो ये पीटीआई के ही लोग हैं। पीटीआई वालों ने कहा ठीक है, आप आइडेंटिटी जो है वो रिवील कर दें। आज जो है वो जब ये कुछ वकील जो हैं वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि आज हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि कहाँ हैं मुर्गियाँ और कहाँ हैं वो टाउट सहाफ़ी, आज वो ज़रा बदतमीज़ी करके दिखाएं। 2-3 काले चेहरे नज़र आए जिन्होंने उस दिन अलीमा खान साहिबा के सामने बदतमीज़ी की, मगर वो छुपे हुए हैं। तो आज जो है वो एक सहाफ़ी हमें नज़र आए जिन्होंने एक सख्त जो है वो ज़बान इस्तेमाल की अलीमा खान साहिबा के सामने, और फिर उसकी वीडियोज़ आ गई हैं कि उसके बाद जो है वो क्या हुआ। तो ये सारा मामला है, और समझ नहीं आ रही कि जो है वो एकदम से इस तरह के अटैक्स जो हैं वो क्यों किए जा रहे हैं लीडरशिप पर, और कौन लोग हैं जो इस किस्म का इंतशार जो है वो फैला रहे हैं। इनफैक्ट अलीमा खान ने भी जो है वो पुलिस से पूछा कि भाई कौन लोग हैं जो वो अंडे दे रही थी मुर्गियाँ, वो कहाँ हैं, ज़रा हमें बताया भी जाए। अब अलीमा खान साहिबा ने भी इस चीज़ का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का पैगाम पहुंचाना जो है वही मेरा फोकस है, तंग करने वालों को जवाब देने का फ़ायदा नहीं है, मैं कोई सियासत यहाँ पर नहीं करने आई हूँ, सिर्फ इमरान खान का पैगाम देने आई हूँ। और उन्होंने कहा कि 3-4 लोग हैं जिनको प्लान किया गया है हमें तंग करने के लिए, लेकिन मैं उनका जवाब जो है वो नहीं दूंगी। अब कौन है ये तंग करने वाले, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई इनकी आइडेंटिटी जो है वो सामने नहीं आ रही। और हमारे यहाँ जो नामालूम अफराद होते हैं वो सबको पता है कि वो किन के अफराद होते हैं।